सबको मेरे तरफ से नमस्कार। पहले मैं बता दूं कि मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है, so I will mix up my speech with Hindi and English. This is a webinar on आज़ादी, बराबरी और अमन, भगत सिंह से गांधी, liberty, equality and harmony, Bhagat Singh to Gandhi. This is a very relevant topic which we are discussing from yesterday, and today also we have with us one eminent professor, Professor Saman Lal, and he will be delivering on Bhagat Singh. Actually, both Gandhi and Bhagat Singh were the champions of the freedom movement of India, and both believed in liberty, equality and harmony. But only thing is that I will say, being a student of history, their working is a bit different, where Gandhi was believing in total non-violence, and for necessary of freedom, probably Bhagat Singh also felt the need of violence if required. Anyways, I will not go in detail of all these things. Before we start, I need to introduce our today's speaker, and he is Professor Saman Lal. Saman Lal was born in 1947 in Rampura Phul, Bhatinda district, Punjab. And he was an academician, and in fact, he is an academician. And he joined Jawaharlal Nehru University and retired from there in 2013 as professor in Hindi translation. And after retiring from Jawaharlal Nehru University, Professor Saman Lal joined and currently is working as the Dean Faculty of Languages, Punjab University, Chandigarh. Professor Saman Lal is a voracious writer, I will say, and he has authored about 55 books written mostly on Bhagat Singh in the languages of Hindi, Punjabi and English. He is also the recipient of Shiromani Hindi Sahityakar Award offered by Punjab government in 2014. He was also the recipient of Sahitya Akademi Prize for Translation in 2002 and non-Hindi speaking Hindi writer National Award in 2001. So Professor Saman Lal is one of the eminent experts who is working tirelessly on the works of Bhagat Singh and his contribution in the freedom movement of India. So let me invite Professor Saman Lal and speak on his topic. Now over to Professor Saman Lal. Please, sir. So you need to unmute. Yeah. Now, am I audible? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, you are sir. audible, Yes, and sir. you are welcome, sir. Okay. Namaskar to everybody. आज आपने जो टॉपिक रखा है, बराबरी, आज़ादी, अमन, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और असल में ये सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी एक तरीके से इंस्पायर्ड हैं, 1781 के लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी जब बराबरी और आज़ादी और भाईचारा, इन चीज़ों का नारा पूरे वर्ल्ड ने उसको अडॉप्ट किया था और पूरे वर्ल्ड में ख़ासतौर पे एशिया और अफ्रीका, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों द्वारा कॉलोनाइज थे, यानी बहुत सारे मुल्क इंग्लैंड द्वारा कॉलोनाइज थे, 60 से ज़्यादा मुल्क, और 40 से ज़्यादा मुल्क फ्रांस द्वारा कॉलोनाइज थे। हॉलैंड ने कुछ मुल्कों को कॉलोनाइज किया हुआ था, डच ने, और स्पेन ने भी कुछ मुल्कों को कॉलोनाइज किया हुआ था, खासतौर पे लैटिन अमेरिका में।
तो ये सारे नारे हमेशा संघर्षों में आते हैं, और उससे भी आगे बढ़ के सोशलिज्म का नारा भी आया हुआ है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी आया है, जो भगत सिंह ने जिसको पॉपुलर किया। हालांकि वो हसरत मोहानी ने कांग्रेस के सेशन में ये नारा दिया था, लेकिन उस नारे को जो पॉपुलैरिटी मिली, जो लोगों तक गया, जो आज हिंदुस्तान का क्या पाकिस्तान का और साउथ एशिया में बहुत सारे जितने भी स्ट्रगलिंग लोग हैं, प्रोटेस्टिंग लोग हैं, मजदूर, किसान, स्टूडेंट, यूथ, सब के सब इस नारे को अपनाते हैं। और इस नारे को भगत सिंह के वक्त में साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यानी डाउन विद इंपीरियलिज्म एंड अप विद रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन की बात करनी माने वो आज़ादी से थोड़ी आगे बढ़कर बात करनी, माने बराबरी तो शामिल है उसमें। आज़ादी असल में हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास, आज़ादी संग्राम का इतिहास जो है काफ़ी उलझनों से भरा हुआ है, इतना सीधा साधा नहीं है। उसमें 3 ट्रेंड्स मुख्य तौर पे रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के संग्राम में। एक ट्रेंड जिसको मेन ट्रेंड कहना चाहिए, मेन स्ट्रीम जो थी आज़ादी संग्राम की मूवमेंट की, दैट वाज कांग्रेस पार्टी। एंड कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से अपने दौर से गुजरती हुई गर्म दल और नरम दल इस दौर से गुजरी है। और मैंने गर्म दल में 3 लोगों का नाम मशहूर था, महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक का, और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल का, और पंजाब से लाला लाजपत राय का। बाल लाल पाल, इनको त्रिकड़ी इनको कहा जाता था आज़ादी संग्राम की। और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले और इस तरह के लोग थे जो गांधी जी के गुरु भी थे, और फिरोज शाह मेहता, ये महाराष्ट्र से ज़्यादा बॉम्बे वगैरह से लोग थे। पूना असल में महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा जिसको कहना चाहिए एनलाइटनमेंट का सेंटर था। तो उस पूना से लोकमान्य तिलक ने भी पूना से ही केसरी अखबार निकाला था। बॉम्बे भी रहा है, लेकिन पूना का अलग ही मुकाम रहा है उस पूरे दौर में, जहाँ पे आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन बहुत हुई है। तो लेकिन 1920 में जब लोकमान्य तिलक का देहांत हो गया, तो कांग्रेस में गांधी का दौर शुरू हुआ। यानी आफ्टर दैट महात्मा गांधी बिकेम द ओनली लीडर इन द सेंस, चाहे कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई भी रहा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट महात्मा गांधी तो शायद पूरे उसमें एक ही बार बने हैं, कभी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट वगैरह नहीं रहे, कभी कांग्रेस के अहदेदार भी नहीं रहे, कोई वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर, सेंट्रल वर्किंग कमेटी मेंबर, किसी में कभी कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस का पत्ता भी नहीं हिलता था बिना महात्मा गांधी की इच्छा के या राय के। हालांकि बहुत बार उनकी राय को इग्नोर भी किया जाता था, मैंने खासतौर पे पार्टीशन के वक्त में तो भयंकर रूप से इग्नोर किया गया। मैंने उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाके नेहरू और पटेल ने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया था। एंड महात्मा गांधी वाज नेवर फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री, एंड ही वांटेड टू कीप कंट्री यूनाइटेड, एंड ही वाज रेडी टू कंप्रोमाइज विद जिन्ना, एंड ही वाज रेडी टू इवन ऑफर prime ministership or presidentship to him so that the country could stay united. And दूसरा महात्मा गांधी की जो बहुत बड़ी कहना चाहिए खासियत थी, that was actually his concept of Hindu-Muslim unity. मैंने हिंदुस्तान तो मल्टी नेशनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल बहुत बड़ा मुल्क है, मल्टी रेशियल भी है, और इतनी इसमें विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, पहाड़ से लेके समुंदर से लेके मैदान तक, हर तरह की इसमें ज्योग्राफिकल विविधता है, हर तरह की इसमें मैंने नॉर्थ ईस्ट के लोग, मिजोरम या मैंने उस पूरे एरिया के नागालैंड वगैरह के लोग जो है, उनका हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के लोगों से कुछ भी नहीं मिलता। मैंने दे आर मोर क्लोज टू रेशियली। वो म्यांमार, बर्मा वगैरह के करीब है, बर्मा, थाईलैंड, तो उनके मैंने शक्ल सूरत भी वो सब कुछ उनसे मिलता है। और साउथ इंडिया का भी बिल्कुल अलग
जो है उनका स्ट्रक्चर है, मैंने फिजिकल स्ट्रक्चर से लेके, तो दे आर मोर क्लोज टू श्रीलंका, मालदीव्स एंड ऑल दैट, एंड वी इन पंजाब आर मच मोर क्लोज टू पाकिस्तान पार्ट ऑफ पंजाब। तो क्योंकि हिंदुस्तान तो एक ही था, तो वो सारा एक कई मुल्कों में बंट गया, कम से कम 3 मुल्कों में तो बंट ही गया, बल्कि एक वक्त में तो बर्मा भी हिंदुस्तान का पार्ट था। मैंने अंग्रेजों ने बर्मा पे भी कब्जा किया हुआ था, तो 1933 तक तो बर्मा हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, और हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उन सबको बर्मा ही भेजा जाता था। 1857 का जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हमारे हीरो नायक एम्परर बहादुर शाह जफर, बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया था। आज भी उनकी कब्र जो है रंगून में है। और गुरु राम सिंह नामधारी सिखों के गुरु 1872 में जब बहुत ज़बरदस्त नामधारी आंदोलन हुआ था, तो उनको भी एग्जाइल करके बर्मा में भेजा गया था। उनकी भी वहीं पे जिसको कहना चाहिए कि डेथ हुई। और लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के सगे चचा थे, तो 1907 का जब पेजेंट मूवमेंट हुआ, मैंने पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट जब हुआ, जबकि 1907 में किसानों की हालत वही थी जो आज है। आज जो इतना बड़ा किसान आंदोलन पूरे देश में है और खासतौर पे पंजाब में, तो वो उस वक्त भी किसान कर्ज में डूबे हुए थे। और एम डार्लिंग की मशहूर किताब उन्हीं दिनों आई है, द पंजाब पेजेंट्री इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेट, और आज भी वो किताब रेलेवेंस मानी जाती है। फर्क 1907 के और आज के किसान आंदोलन में ये है कि आज का किसान आंदोलन, मैंने इस बार पिछले 10-15 दिनों से जो चल रहा है, 3 फॉर्म कानून पास होने के बाद, खेती संबंधी जो 3 कानून अभी सरकार ने पास किए हैं, उनसे थोड़ा पहले तक किसान की स्थिति ये थी पंजाब में नहीं, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कि पेजेंट्स वर कमिटिंग सुइसाइड्स। यानी पिछले 20-25 साल में पी साईनाथ आपके बम्बई में ही रहते हैं, इरफान साहब तो उनको खूब अच्छी तरह जानते होंगे और दोस्त भी होंगे। तो द पीपल्स आर्काइव्स फॉर रूरल इंडिया जो उन्होंने बनाया हुआ है, और उसमें जो बहुत अच्छी किताब उन्होंने जब लिखी थी, एवरीवन लव्स ए गुड ड्रॉट, तो सूखे को हर कोई पसंद करता है। तो क्योंकि तो उसमें उन्होंने तो खैर थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन बहुत कर रखी है। तो 20 लाख से ज्यादा किसान पिछले 20-25 साल में आत्महत्याएं कर चुके। मैंने आज हम थोड़ा एक तरीके से विडंबना की भी बात है, आयरनी भी है, हम बातें करते हैं आज़ादी की, हम बातें करते हैं बराबरी की, हम इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, और हिंदुस्तान की असलियत क्या है? मैंने अंग्रेजों के वक्त से हिंदुस्तान की जनता की ज़्यादा बुरी हालत। क्या हो रहा है कोविड-19 में? दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो है हिंदुस्तान की। 1 लाख लोग महात्मा गांधी के जन्मदिन तक मर चुके होंगे, और आंकड़ा जो है वो अमेरिका से आगे निकल चुका होगा मरीजों का। इसमें अगर अमेरिका में 70-75 लाख लोग कोविड से शिकार हुए हैं, तो 60 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान में हो चुके हैं, और 10 दिन में अमेरिका को पार कर जाएगा हिंदुस्तान। और मरने वालों की गिनती जो है अमेरिका के बराबर अगर ना भी हुई, तो थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि ब्राज़ील को तो पार कर गए। ब्राज़ील में इस वक्त 1,30,000 के करीब लोगों की डेथ हुई है, और हिंदुस्तान में 1 लाख लोगों के करीब हो चुकी है, या अगले ही दिनों में कुछ पहुंच जाएगा वो आंकड़ा, और ब्राज़ील को पार कर जाएगा। मैंने ये हम अमेरिका भी बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का बात करता है, इलेक्शनों की बात करता है, रिपब्लिकन की बात करता है। मैंने ब्राज़ील तो ऐसा पाखंड भी नहीं करता, हिंदुस्तान तो उससे बड़ा पाखंडी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी अपने आप को कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट नॉनसेंस। क्या डेमोक्रेसी? सड़कों पे लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। जो हाल हुआ है बॉम्बे में कोविड के दौरान में, जो हाल हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, जैसे लाखों सड़कों पे मजदूर बेचारे जिनका काम छूट गया, जिनका सब कुछ छूट गया, तो उस तरीके से, और 4 घंटे के अंदर अंदर मुल्क को ऐसे बंद कर दिया गया जैसे इनके बाप की जायदाद हो मुल्क। मैंने और करोड़ों लोगों को जो है एकदम से नौकरी से और सब चीज़ों से ख़त्म कर दिया गया।
मैंने ये तो आज़ादी के संग्राम से मच भयंकर रिजीम हिंदुस्तान फेस कर। आज़ादी, ब्रिटिश रिजीम भी इतना क्रूअल और इतना जालिम रिजीम नहीं था जो इस वक्त पिछले 6 साल से हिंदुस्तान जिस रिजीम को फेस कर रहा है। तो मैंने अंग्रेज 1918 में अंग्रेजों के वक्त में भी इसी तरह की बीमारी पैदा हुई थी, मैंने कोविड-19 अब पैदा हुआ है, तो इन्फ्लुएंजा 1918 के आसपास पैदा हुआ और 1918 में मैंने जो है वो 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ और 1914-19 में पहला विश्व युद्ध हुआ और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से पहले उसी के आसपास मैंने आज आप 1918 की ब्लैक एंड वाइट फोटो देखते हैं, लोगों के चेहरों पे मास्क लगे हुए और तमाम जिस तरह से उस वक्त सब हुआ है और लाखों की संख्या में लोग इस वक्त मरे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वो बुरी हालत नहीं थी 1918 में जो 2020 में, और उसके लिए पूरे के तौर पर ये रिजीम जिम्मेदार है। मैंने 1918 में तो कॉलोनियल रिजीम को, ब्रिटिश रिजीम को जिम्मेदार ठहरा सकते थे, लेकिन आज जो एक आज़ादी किसके लिए, बराबरी किसके लिए, इंसानों की बात करते हैं ना, इंसानों को आज़ादी चाहिए ना, किसी भी मुल्क के इंसान में, सारी दुनिया के इंसान भी बराबर होते हैं, वो भी मानना चाहिए कि सारी दुनिया के इंसान बराबर है। इक्वलिटी इज फॉर ऑल वर्ल्ड, नॉट फॉर जस्ट फॉर इंडिया। मैंने ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एवरीवेयर, ना उसमें कोई जात का भेद है, ना उसमें कोई रेस का भेद है, ना उसमें कोई रंग का भेद है, और जहाँ जहाँ भी ये भेद है, रंग का हो या जात का हो या कलर का हो या कोई भी, दे आर ऑल इनह्यूमन, whether it's India, whether it's America, whether it's Africa, whether it's Asia, wherever it is. आज़ादी भी इंसानों को चाहिए, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो एशिया के हों, चाहे वो जो लोग अपने आप को तो थोड़ा जिनको अच्छी आज़ादी मिली हुई है, यूरोप है वो एक इलाका जिसको थोड़ी सी ठीक तरह से आज़ादी और थोड़ी सी बराबरी भी एक तरीके से मिली हुई है, कुछ कानूनी तौर से, कुछ सिविल सोसाइटी के तौर से। लेकिन एशिया और अफ्रीका के लोगों के पास कौन सी आज़ादी और कौन सी बराबरी, सब पाखंड है। ना एशिया और अफ्रीका के मुल्कों के पास कोई आज़ादी है, ना एशिया और अफ्रीका के मुल्कों के पास कोई बराबरी। दे आर कंप्लीटली लिविंग अंडर द regime's boots. They are kind of military boots, worse than colonial boots. मैंने एशिया और अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा colonialism रहा है, और colonialism भगत सिंह के ऊपर अगर हम लौटें तो भगत सिंह ने अपने मेजर राइटिंग में और अपने कोर्ट स्टेटमेंट्स में और उसमें क्या कहा, आप याद करिए। भगत सिंह ने कहा था कि इट मेक नो डिफरेंस in place of Lord Ripon, Sir Purushottam Das Thakkar is Viceroy of India, or in place of Lord Irwin, Sir Saad Tej Bahadur Sapru is Viceroy of India. If the system of exploitation and oppression, if the system of exploitation of man by man continues, there is no difference between Britishers and Indians. Rulers are the same. It's not a question of color that विदेशी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। विदेशी से ज्यादा एक सिस्टम वो विदेशियों ने बनाया या हिंदुस्तानियों ने बनाया। हिंदुस्तानियों ने उसमें सिस्टम में क्या चेंज किया? मैंने आज़ादी तब थी जब पता चलता कि अब हिंदुस्तान के लोगों को, और हिंदुस्तान के लोगों में 90-95% कौन, 70% किसान माने जाते हैं, 70% पीपल वर कंसिडर्ड पेजेंट्स। अब थोड़ा शायद डाटा कम हो गया, 60% हो गए, और 25-30% मजदूर होते थे। आज बम्बई में ही, आप बम्बई में हैं, बम्बई की वर्किंग क्लास कहाँ गई? पूरी की पूरी टेक्सटाइल मिल जो है वो जमींदोज कर दी गई, बड़े बड़े माल बना दिए गए वहाँ पे, पूरी ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास को खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। They cannot fight for their rights. उनकी मैंने रोजी रोटी ही खत्म कर दी, और पूरे हिंदुस्तान में ये हाल है। इंदौर में टेक्सटाइल मिल्स खत्म कर दी गई, और बहुत सारी जगहों पे जितने भी कारखाने थे या फैक्ट्रीज थी, सरकार अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रही है, बेच रही है सब। तो जब तक पब्लिक सेक्टर थोड़ा पंडित नेहरू ने जो बिल्ड किया था, दैट वाज अ बिट ऑफ रिलीफ फॉर द वर्किंग क्लास ऑफ इंडियन पीपल, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी थी, उसमें
थोड़े बहुत उसके रोजी रोटी के सामान था। कुछ लोगों में मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग की भी व्यवस्था थी। देवर फ्लैट्स, लिविंग फ्लैट्स फॉर एम्प्लॉइज और लाइक इन यूनिवर्सिटीज एंड अदर दैट। अब क्या है, अब तो सब कुछ छोड़ दिया है अडानी और अंबानी के ऊपर, कारपोरेट्स के ऊपर, बेच दिया है मुल्क को, बेचा जा रहा है लगातार। आज क्यों इतना किसान एजिटेटेड है? इसीलिए एजिटेटेड है कि उनको लगता है कि अब उनको किसान से खेत मजदूर में बदल दिया जाएगा। कारपोरेट्स आएंगे, सारी जमीन को खरीद लेंगे, मालिक बनाएंगे, और जो आज किसान हैं उनको पकड़ पकड़ के कहेंगे कि तुम ये बीजो, तुम ये बीजो, तुम ये बीजो और तुम ये करो। और जो उसको खेती से उपज होती है, जो खेती से उसको आमदनी होती है, उससे आधी से उसकी आधी भी आमदनी जो है एक खेत मजदूर के रूप में उनकी नहीं रहेगी। दे विल बी एट द मर्सी ऑफ दिस कॉर्पोरेट्स। तो ये चीजें मैंने, ये आज़ादी बराबरी, ये सारी चीजें कहने में अच्छी लगती, लेकिन हकीकत, जमीन की हकीकत इनकी बिल्कुल अलग। ये हमारी मिडिल क्लास की जो है वो ड्रीम वर्ल्ड है। हम लोगों को क्योंकि थोड़ी सहूलतें, थोड़ी सुविधाएं मिली हुई हैं, वी कैन सिट एंड डू दिस वेबिनार्स। तो किसान तो वेबिनार में ये नहीं कर सकते। किसान के बारे में हम कर सकते हैं, लेकिन किसान अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते। They have to fight even in the days of COVID. They have to come on the roads and fight. और पंजाब में कर रहे हैं, मैंने रेल भी रोक रहे हैं, चक्की जाम भी कर रहे हैं, सड़कों पे भी आ रहे हैं, तो औरतें भी आ रही हैं। मैंने द लार्जेस्ट बिगेस्ट नंबर इन पेजेंट मूवमेंट एट दिस मोमेंट आर वुमेन। तो मैंने ये जो सारी चीजें हो रही हैं, तो उसमें ये सारी चीजें गांधी, मैंने पंजाब के पेजेंट्री के लिए तो इसमें भगत सिंह इज द मोस्ट इंस्पायरिंग फिगर फॉर दैट। तो भगत सिंह के फोटो लेके, भगत सिंह के बैनर लेके, भगत सिंह के कोटेशंस लेके, वो सारे अपने और नारे इनकलाब जिंदाबाद के लगाते हुए दे आर डूइंग। देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी इन पंजाब। देयर नेवर वाज एनी इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी इन पंजाब, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ है, उस वक्त जरूर हिंदुस्तान में उनका काफी बड़ा असर हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही कॉल दी थी ये उन काले कानूनों के खिलाफ। तो उसी से गांधी बने। मैंने अंग्रेज जो ब्लैक लॉज, काला कानून उस वक्त लाए थे, जिसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील वगैरह थी, तो रॉलेट बिल जो लाए थे पहले ऑर्डिनेंस के रूप में, फिर कानून के रूप में, तो उस वक्त गांधी जी ने उसके खिलाफ ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक की कॉल दी थी। और पंजाब में तो उसका जबरदस्त असर हुआ था। और लेकिन उस असर के बाद जो जलियांवाला बाग में भयंकर कत्लेआम हुआ 13 अप्रैल 1919 को, और जिसकी खून सनी मिट्टी लाहौर से अगले ही दिन 14 अप्रैल को भगत सिंह आए थे और लेके गए थे 12 साल की उम्र में, और वो मिट्टी आज तक संभाली हुई है। उनके गांव का जो म्यूजियम है खटखट कलां, उसमें आज भी एक उसको डिस्प्ले पे रखा हुआ है। तो मैंने, और भगत सिंह के ही चाचा ने 1907 में जो आज़ादी और बराबरी की लड़ाई, तो असल में वो है, उन्होंने किसानों की लड़ाई उस वक्त लड़ी थी लाला लाजपत राय के साथ मिलके ही। उनका उस समय जो संगठन था, दैट वाज इट वाज कॉल्ड इन हिंदी भारत माता सोसाइटी, एंड इन उर्दू इट वाज कॉल्ड मुहब्बाने वतन। मुहब्बाने वतन माने वतन की मोहब्बत, देश की मोहब्बत। तो वो पेजेंट स्ट्रगल को उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, और इसकी वजह से उनको 2 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। और लाला लाजपत राय तो आ गए थे कुछ समय के बाद, लेकिन सरदार अजीत सिंह तो एग्जाइल रहे 38 साल तक, 38 ईयर he had to live in exile. He was in Argentina, he was in Brazil, he was in Italy. In Italy, he was broadcasting in Azad and Fauj bulletins, Netaji Subhash Chandra Bose bulletins. And then he returned to India with very serious illness in March 47, when Jawaharlal Nehru had become the interim Prime Minister of India, and he invited him back. And he was to immediately shifted to Dalhousie because of his illness. And it was there that on 15th August 47 itself, after listening to Pandit Nehru's Christ with Destiny speech, at 3 o'clock in the morning, he expired. So that is a kind of tradition of Bhagat Singh's family. This family has
given so much sacrifices for the country. Not only Bhagat Singh's whole ancestors also. And his uncle Swaran Singh, he was also in jail. His father Kishan Singh also used to be in jails. So Swaran Singh ko jail mein tap dekho. He got tuberculosis in jail and he died at the age of exactly of Bhagat Singh's age, at 23. And his widow, बीबी हुकुम कौर, जिसको लिखे हुए खत हमारी जो राइटिंग की कलेक्शन है हिंदी में और अंग्रेजी में, वो सब हमने शामिल किए हुए हैं. तो which he wrote to his चाची बीबी हुकुम कौर, and बीबी हरनाम कौर is another aunt. राजीत सिंह की पत्नी जो उनकी चाची थी, she lived like a widow for 38 years, and this was a rich family which has suffered so much. किशन सिंह तो कई बार आगे पीछे भी जेल में रहे, भगत सिंह की फांसी के बाद भी जेल में रहे. भगत सिंह's own two younger brothers, Kulbir Singh and Kultar Singh, they were kept in Deoli camp in 1945, 46, 42, 43 मैंने जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, जब जयप्रकाश नारायण वगैरह सबको गिरफ्तार किया हुआ था, तो एक देओली कैंप बनाया गया था. उस कैंप में ये सब लोग रखे हुए थे और उसमें ये भगत सिंह के दो भाई छोटे कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भी, उसमें 5-5 साल तक वो लोग भी जेलों में रहे. तो मैंने इट इज नॉट जस्ट भगत सिंह, इट्स द होल फैमिली ऑफ भगत सिंह who had been undergoing, and despite being one of the richest people of the Punjab, and they had a huge lands in Layalpur. They had a 6-acre mango garden in Layalpur, which I was told that it comes to about 1 crore rupees these days. Despite being that kind of family, they have suffered so much. So ये जो है आज़ादी की संग्राम या बराबरी का संग्राम, ये एक 15 अगस्त 47 से जुड़ा हुआ नहीं है. ये 15 अगस्त 47 को बदल गया. मैं आपको एक झूठा सच नॉवल, यशपाल का जो मशहूर हिंदी नॉवल है, तो उसमें 15 अगस्त का रात का एक उसमें से बयान करता हूँ कि कोई मुसाफिर रात को गाड़ी से उतरा 15 अगस्त, मान लीजिए रात के 12 बजे, तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया. मैंने लेकिन हकीकत में क्या होता है, तो रात ही है, वैसी की वैसी रात है, कोई नई रात तो हो नहीं गई, उसमें कोई फर्क तो नज़र नहीं आ रहा. और तो मुसाफिर उतरा और उसको काफ़ी देर तक कोई सवारी नहीं मिली, रिक्शा वगैरह. जब रिक्शा मिला तो रिक्शा पे बैठ के जब वो मुसाफिर जा रहा था अपने जिस भी जगह उसको जाना होगा जिस इलाके में, तो उसने मुसाफिर ने पूछा रिक्शा वाले से कि अरे भाई तुम आज भी रात में रिक्शा चला रहे हो? हाँ, आज तो मुल्क आज़ाद हुआ है, तुम क्यों नहीं अपने घर में बैठ के जश्न मनाते? तो रिक्शा वाले ने कहा साहब, हमारी क्या आज़ादी और क्या ना आज़ादी, घर में 4 बच्चे भूखे बैठे हैं, अगर मैं ये रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो उनको खाना कौन खिलाएगा? वो भूखे मरेंगे हम लोग क्या? महात्मा गांधी कहाँ थे उस वक्त 15 अगस्त 47 को? नोआखाली में बैठकर भूख हड़ताल कर रहे थे, यहाँ भयानक दंगे फसाद हो रहे थे. मैंने जश्न आप जिन चीज़ों पर जिन दिनों के मनाते हैं, 10 लाख हिंदू और सिख और मुसलमान ने एक दूसरे को काट डाला 15 अगस्त के दिनों में. मैंने उस 15-20 दिन, एक महीने में, इसमें बराबर का ही हिस्सा है दोनों का. 5 लाख हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे को काटा और 5 लाख मुसलमान भी काटे गए हिंदू सिखों द्वारा. तो ये पार्टीशन के दौरान जो सब हुआ है, और उसके बाद से कहें कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ ठीक है, शायद पाकिस्तान से हमारी हालत थोड़ी अच्छी है, और लेकिन ये सब कहना कि बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसा कुछ खास चीज़ ज़मीन पे नहीं. हमारे मिडिल क्लास को हासिल हुआ, हम लोगों को थोड़ा सत्ता में हिस्सा मिला है, थोड़ा सा इकोनॉमी से भी थोड़ा टुकड़ा मिला है हमें, उसकी वजह से आज हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं. तो उसमें ये आज़ादी और बराबरी, ये संघर्ष, भगत सिंह हो या गांधी हो, गांधी जी जितना चाहे अहिंसा की बात करते रहे हो, भगत सिंह ने कहा उनके बारे में कि ये जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का या लोग जमीन दिल बदलने का, ये सब इनका हवाई ख्याल है, ख्याली पुलाव है. इस ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होने वाला. कोई हिंदुस्तान का किसी का दिल आप नहीं बदल सकते. जब वो पुरुषोत्तम ठक्कर का दिल नहीं बदल सके, जब वो बिरला का दिल नहीं बदल सके, जिनके घर में वो रहते थे दिल्ली में, तो अदानी वाले का दिल कौन बदलेगा?
आज अंबानी कोविड-19 के दिनों में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अमीर हो गया। कहाँ से हो गया? कौन उसको इतना अमीर बना रहा है? यही सरकार बना रही है, यही सिस्टम बना रहा है। जनता सड़कों पे मर रही है कीड़े मकोड़ों की तरह, और ये सारा कुछ अदानी बन के। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ये हमें आत्मनिर्भरता के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अपॉर्चुनिटी मिली है आपको हिंदुस्तान की जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने के लिए। अब वो मार रहे हैं, लोगों को पकड़ के जेलों को बंद कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के सगे ग्रैंड सन इन लॉ को बॉम्बे की जेल में आपने सड़ा रखा है। सुधा भारद्वाज को, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट की भी बेटी है और अब खुद अपने में जनता के साथ जुड़ी हुई है, अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए देशभक्ति की जनता की सेवा करने हिंदुस्तान आई हुई है, उनको बीमारी की हालत में आपने सड़ा रखा है बम्बई की जेलों में। 80 साल 82 साल के कवि वारवर राव को अपने जेलों में सड़ा रखा है। ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इसी अपॉर्चुनिटी के तहत डॉक्टर अनंत तेलतुंबड़े 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पे उस दिन पकड़ के जेल में बंद हुए कोविड-19 के बीच। क्या आजादी, क्या बराबरी है? क्या, कहाँ है आजादी, कहाँ है बराबरी? सब बातें, ख्याली बातें। और भगत सिंह वॉज ए मोस्ट रियलिस्ट पर्सन। वो रियलिज्म को ही अपना वो मानता था आदर्श। वो गांधी जी को आइडलिस्ट मानता था। मैंने ऐसा नहीं है कि गांधी और भगत सिंह मिले तो शायद कभी भी नहीं, जबकि भगत सिंह की मुलाकातें पंडित नेहरू से हुई हैं और भी मदन मोहन मालवीय वगैरह से, लाला लाजपत राय से। बहुत नेशनल मूवमेंट के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। उनके पिताजी सदा किशन सिंह तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, और उनके साथ भगत सिंह ने 1924 का बेलगावी सेशन, या बेलगांव, उस वक्त तो बेलगांव कहते थे, बेलगांव सेशन अटेंड भी किया। खुद गए हैं, उसमें शामिल हुए उनके पिता के साथ 16-17 साल की उम्र में। शायद वो एक ही सेशन था जिस सेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, एक ही बार में। और बाद में भी मैंने कांग्रेस के साथ उनका नजदीकी का ताल्लुक है। उनकी मैंने शुरू में बात की थी, देयर वर 3 ट्रेंड्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। एक मेन ट्रेंड या मुख्य धारा जिसको कहा जाता है, मेन स्ट्रीम, दैट वाज कांग्रेस, व्हिच वाज लार्जली लेड बाय महात्मा गांधी आफ्टर 1920. सेकंड ट्रेंड वाज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो ट्रेंड था, ये स्टार्ट तो मैंने 1857 में पुणे में जो भयंकर प्लेग पड़ी है महाराष्ट्र में, जिसमें वहाँ के कमिश्नर ने बहुत ही भयंकर जुल्म किया था लोगों के ऊपर, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, और उसको चाफेकर ब्रदर्स ने शूट किया था, और वासुदेव बलवंत फड़के पहले उससे हुए। तो वहाँ से शुरुआत हुई है, तीनों चाफेकर बंधुओं को फांसी हुई, और उसके बाद से बंगाल में बहुत स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट रही है। मैंने 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई। 1905 के बंगाल के विभाजन में, पार्टीशन में, जैसा आज का वेस्ट बंगाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है, एक्चुअली इसकी नींव तो लॉर्ड क्लाइव उसमें डाल के गया था, मैंने लॉर्ड कर्जन उसमें डाल के गया था, जब उसने 1905 में रिलीजियस बेसिस पे, कम्युनल बेसिस पे पार्टीशन की थी बंगाल की। एक हिंदू मेजॉरिटी बंगाल बनाया था उसने, जो आज हमारा अपना वेस्ट बंगाल है, और एक उसने मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल बनाया था, तो ईस्ट बंगाल, जो उस वक्त वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल कहे गए, और जो आज वेस्ट बंगाल या बंगाल और बांग्लादेश कहे जाते हैं। तो ये पार्टीशन उस वक्त उसने की, उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुई, और उसमें बहुत सारे लोग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में शहीद भी हुए। लेकिन उसी वक्त टैगोर ने ये कहा कि सारे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखियां बांधे। मैंने व्हेन द फेस्टिवल ऑफ राखी केम, तो राखी ने बहन भाई का जो नाता राखी वाखी बांधने का, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधे, और वो हुआ। और इतना पब्लिक प्रेशर, धीरे धीरे जनता का प्रेशर बढ़ा कि अल्टीमेटली 2011 में वो पार्टीशन बंगाल का खत्म करना पड़ा, और फिर से बंगाल एक हुआ।
और बदकिस्मती बंगाल की कि जो सब गुजर चुके हैं. तो that movement, since it was formed in United States of America and it was a Republican state, they were inspired by the democratic structure of that society. And America was not today's America. It was a bit progressive America of 1913, 14, 15, etc. The imperialist America came out after Second World War. जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम फेंके, after that it has become the most vile nation. I mean, not people, but its rulers. They are the most vile rulers of the world. They have created worst kind of, cruelties and oppression in the world. Vietnam War, Iraq War, Panama, whole South America, they used to think as if it's a semi-slave of that country. That's what Chavez and Bolivian Evo Morales, when they rebelled against it and told them that Latin America is तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं है. Latin America has its own identity and we rebel against it. So वो अमेरिका 1945 में जाके बम फेंकने के बाद that became the most world's vilest kind of imperialist country जो आज तक है. And that American people also suffer. It's not that American people do not suffer. They also suffer. So that Gadar movement took the concept of United States of India, that they created the map of India and they wanted that it will be United States of India and it will be a federal structure like America. Now, today's India, whatever so-called democracy there exists, it's not a federal structure. It's a unitary structure, centralized structure. Center hold all the power and states have no power, minimal power. It's a sort of artificial power which the states have, which we are seeing in this peasant movement. Which state was asked to, all states have peasants. All states have been opposing except the BJP states. Still they passed their law without consulting any state and the states are now rebelling. Punjab has gone to Supreme Court or other states are also, crying over it. Their concept of India, Gadarite's concept of India in 1913-14 was much advanced than Congress concept. Congress concept जो है वो unitary और centralized उसका India का था. Congress never wanted a sort of federal structure. अगर Congress federal structure के लिए agree कर जाती, जिसको probably महात्मा गांधी agree कर जाते, probably partition would not have happened. Cripps mission which came to India, Lord Cripps, which was a Labour Party leader in England, he has given a plan that there will be 3 kind of states in India. One area which will be Muslim majority, one area which will be Hindu majority, and one the states of India, feudal states which were existing 560 or something. And that will have a federal structure. Jinnah has agreed to that. Nehru and Patel didn't agree. Gandhi would have agreed. That's how the partition was forced on India. So all people are responsible for partition, not just Jinnah. All people are responsible, including Congress. Mahatma Gandhi may be left out of it, but otherwise, so all the problems which country is facing today, because of the rule of RSS BJP, as RSS BJP had come to power because of Congress' own sins. इन लोगों ने जो किए हुए हैं गुनाह हिंदुस्तानी जनता के प्रति और इन लोगों ने जो गलतियां की हुई हैं उसकी वजह से ये पावर में. This kind of fundamentalist, they are just another form of Jinnah. They are another form of Muslim. What is the difference between RSS? One is a Hindutva fundamentalist, one is a Muslim fundamentalist. So and both are crushing the people, they in Pakistan and they in India. So that is a kind of thing which has happened, where all these concepts mean nothing. There is nothing kind azadi, there is nothing kind barabari. What kind of barabari India has?
कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया कि सारे हिंदुस्तानी बराबर है। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट तक, किसको वहां इंसाफ मिलता है? आदिवासी अपनी जमीन के लिए जाते हैं और जमीन दे दी जाती है कारपोरेट्स को। आदिवासी को क्या मिलता है? क्या बराबरी है आदिवासी में और कारपोरेट्स में? कारपोरेट्स के पास पैसा है वकीलों को पे करने के लिए, आदिवासी को किसके? गरीब लोग हैं, उनकी जमीन छीन लो, वो छीनी जा रही है। एंड ऑल द जुडिशियल सिस्टम इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। ये भी एक क्लिशे ही है, झूठा कंसेप्ट है कि कोर्टों से इंसाफ मिलता है। कौन सी कोर्ट से इंसाफ मिलता है? एक्सेप्ट फॉर, नहीं तो ये 2 साल से अनंत तेलतुंबड़े और ये सब सुधा भारद्वाज जैसे लोग जेलों में बंद होते हैं। जैसा अंग्रेज जेलों में बंद करते थे भगत सिंह वगैरह को, वैसा ये सरकार करती है। क्या फर्क है दोनों सरकारों में? इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन। अब इंटरनल कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन है, which Bhagat Singh used to tell, what difference does it make if Lord Ripon comes here? वो अब ये लॉर्ड रिपन की बजाय सर पुरुषोत्तम दास ठक्कर, सर नरेंद्र मोदी और सर अमित शाह बैठे हुए। सर अमित शाह और सर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को ऐसा ही गुलाम बना के रखा हुआ है जैसे अंग्रेजों ने बना के रखा हुआ है। क्या फर्क है? कोई फर्क। भगत सिंह जिंदा होते तो इनके खिलाफ भी लड़ते, और भगत सिंह को मानने वाले आज भी लड़ रहे हैं, जैसे पंजाब के किसान, जैसे उड़ीसा के आदिवासी, जैसे आपके महाराष्ट्र के भी किसान, राजस्थान के भी किसान। तो ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर ए वेरी, फॉर इंडिया लाइक कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन की बहुत सारी कंट्रीज में, दीज कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल आर ड्रीम कॉन्सेप्ट्स। इन प्रैक्टिकलिटी देयर इज नथिंग लाइक आजादी और बराबरी। भ्रातृत्व तो है ही नहीं। भ्रातृत्व माने मजदूरों और किसानों के अपने बीच है, दे आर फ्रेटर्नल टू ईच अदर, they are not enemy to each other, they don't hate each other. It's the system, it's the rulers who create hatred. This present regime, Sir Narendra Modi or Sir Amit Shah, they are agents of hatred. They create hatred among people and they try to make people fight each other. And they have been largely successful in the last 6 years to make people hate each other and fight each other. And people are so innocent or ignorant, and they're not even ready to acquire the sense of knowledge or information. WhatsApp यूनिवर्सिटी ने उनको जो पढ़ा दिया, वो पढ़ के एक दूसरे का खून करने पे उतारू हो जाते हैं। That is what the present situation of India is. So ये सारा कुछ इस तरीके से जो हो रहा है, तो I think इसमें आज़ादी और बराबरी का जो सपना है, बहुत मुश्किल सपना है, hugely difficult task to achieve in countries of Asia, Africa. जो लोग कॉलोनियल रूल के नीचे 100 साल तक या 100 साल से ज़्यादा रहे हैं, कुछ देश 200 साल रहे हैं, कुछ लोग 60 साल रहे हैं, कुछ लोग 50 साल रहे हैं, they have been completely corrupted by the colonial system. Colonialism ने क्या किया? मैंने they created a ground for continuation of their exploitation, their economic exploitation, by corrupting these societies. You see, यही जो डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसको आप देख लीजिए ब्रिटेन में कैसे चलती और हिंदुस्तान में कैसे चलती। The model was built of parliamentary democracy by British. हिंदुस्तान ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का देखे गए। हिंदुस्तानियों को की अपनी इजाद नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की कोई अपनी इजाद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तानियों ने बनाया होगा, लेकिन बनाया किसने? दुनिया के 8 देशों को कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठा करके। और बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, जो ब्रिटेन ने बनाया था, उस ब्रिटेन के गवर्नमेंट के एक्ट को थोड़ा बहुत पॉलिश वॉलिश करके, थोड़ा सुधार के, और उसको जो है वो बना दिया एक्ट। तो पार्लियामेंट क्या है? जो आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, यहाँ आपकी राज्यसभा है। जो आपका हाउस ऑफ पीपल है, वह आपकी लोकसभा है। सेम मॉडल। और उसी मॉडल में वो अपने यहाँ, ना उनके यहाँ इस हद तक करप्शन है, ना उनके यहाँ इस हद तक ऑपरेशन है, ना उनके यहाँ इस हद तक
कंप्रोमाइज विद जुडिशरी। यहाँ तो सब है। यहाँ तो आपकी पुलिस वैसी ही है जैसी कॉलोनियलिज्म बना के गई। तो कॉलोनियलिज्म ने जो पुलिस बनाई, इट्स मच वर्स पुलिस देन कॉलोनियल पुलिस। कॉलोनियल पुलिस तो खाली कानूनी तरीके से काम करके लोगों को फांसी पे चढ़ाती थी, और इंटरनल कॉलोनियल पुलिस, वो इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट की पुलिस रही हो, वो लोगों को बिना किसी कानून के पकड़ के मुठभेड़ों में मार डालती। कितने आदिवासी मारे गए या कितने लोग मारे गए, जिसको उनका दिल करता है गोलियों से उड़ा देती। शैलेंद्र हिंदी फिल्मों के बड़े मशहूर कवि हैं। उनकी एक कविता है, लेकिन कवि बहुत अच्छे थे। उनकी एक कविता भगत सिंह को लेकर ही है। भगत सिंह ना काया लेना अब तुम भारतवासी की, वरना तुमको सजा मिलेगी आज भी फांसी की। लेकिन आज भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं मिलती, आज उसको गोली से मुठभेड़ में उड़ा दिया जाता और उसका कहीं अता पता भी नहीं चलता। दैट इज व्हाट द इंडियन सिस्टम हैज बीन बिल्ट अराउंड ऑन द पैटर्न ऑफ कॉलोनियल सिस्टम, मच वर्स देन कॉलोनियल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम की एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इट्स ए पॉइजनस डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूडलिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म। Corporatism other than capitalism, it's deadly combination of feudalism and corporatism. इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अपने घर में बिना किसी नौकर चाकर के अपनी चाय खाना खुद बना सकती, बाजार से जाके अपना सामान खरीद सकती। फ्रांस का प्रेसिडेंट मित्रा कॉफी हाउस में जाके कॉफी पी सकता है और अपने घर में बिना ताम झाम के अपना खाना या खुद कर सकते। स्वीडन का प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे बिना किसी सिक्योरिटी के जाके अपनी बीवी के साथ फिल्म देख सकता है सिनेमा में, और उसको फिल्म से बाहर निकलते ही बिना सिक्योरिटी की वजह से उसको गोली मार दी जाती। इवन देन दे डिडंट क्रिएट ए सिस्टम जिसमें उसके वहां के प्रधानमंत्री बाहर ही ना निकल सके। आपके प्रधानमंत्री आपके प्रेसिडेंट महलों में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, लोग सड़कों पे कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। हेल्थ के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर है नहीं कोविड का इलाज करने के लिए, सारी हेल्थ सिस्टम तबाह हो गई, बिल्कुल सरकारी सारी शिक्षा तबाह हो गई। कोई स्कूल सरकारी स्कूलों का इस समय हालत नहीं। अब सारे स्टेटों में सरकारी स्कूलों में सिर्फ दलितों के बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनके पास फीस नहीं। लोअर से लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी जो है कर्जे उठा उठा के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में या पब्लिक स्कूल्स में भेजते, चाहे उनका बुरा हाल क्यों ना हो। आपने पूरी एजुकेशन को तबाह कर दिया, आपने पूरी हेल्थ को सिस्टम को तबाह कर दिया, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप कोविड का मुकाबला कर लेंगे। क्या कोविड का मुकाबला करेंगे? आपको मालूम है कि आपके लिए कोई खतरा नहीं। आप मंत्री लोग हैं, एमएलए लोग हैं, आप बड़े अमीर लोग हैं, आपके तो घरों में सारे डॉक्टर आ जाएंगे, आप तो किसी भी दवा के लिए विदेश से भी तुरंत आ जाएंगे। लेकिन वो धारावी का गरीब आदमी क्या करेगा? उसको कोविड होगा तो वो क्या करेगा? हजारों सैकड़ों लोगों को जिनको कोविड हो जाता है, जो आज हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, जो रोज टीवी पे देखते हैं। रवीश कुमार तो अच्छी सोशल डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त के हिंदुस्तान की कर रहा है। माने एक ही चैनल है जो हिंदुस्तान की सोशो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन इस समय अपने टीवी के 1 घंटे के प्रोग्राम में, 1 घंटे के प्रोग्राम में कर रहे हैं। दैट विल बी द रियल सोशल डॉक्यूमेंटेशन फॉर द कमिंग जनरेशंस। मतलब अगर उसको ये सोशल डॉक्यूमेंटेशन को ये रिजीम तबाह नहीं कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो सोशल डॉक्यूमेंटेशन को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन से आपको पता चल रहा है कि हिंदुस्तान की असलियत क्या है। आज हिंदुस्तान के अखबार और हिंदुस्तान का कोई भी चैनल, उसके लिए पूरी सनसनीखेज खबरें लगी रहती हैं। कोई ये नहीं दिखाता, अखबारों में भी अमेरिका के मरने वालों की गिनती 2,06,000 हो गई, 2,07,000 हो गई। ब्राजील के मरने वालों की गिनती 1,31,000 होगी, 1,32,000 होगी। और तीसरे नंबर पे जो हिंदुस्तान का है, वो आपके सारे जो कोविड डाटा देते हैं अखबार,
हिंदुस्तान के, उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं आया। तीसरे नंबर पे मैक्सिको का नाम, चौथे नंबर पे यूके का नाम, या उसके बाद स्पेन का नाम। क्यों जी? आपके 90,000 लोगों का जिक्र क्यों नहीं होता 95,000 लोगों के मरने का आपके अखबारों में? आपका कोविड डाटा इस तरह से तो लोगों की आंख में धूल झोंकते आप। आपने पूरा मीडिया को खरीद रखा है। और आप ये तो बताएंगे कि इतने % लोग हमारे यहाँ ठीक हुए, दुनिया में 1 नंबर पे है ठीक होने में, और मरने वालों में कहाँ है? वो क्यों नहीं बताते आप लोगों को? और जो बीमार होते हैं उनके बारे में क्यों नहीं बताते? कितने हो गए? सबसे ज्यादा जोर खबर पे इस बात के होगा कि इतने लोग ठीक हो गए, सबसे आगे हैं हम दुनिया में इसके कोविड से ठीक होने वालों में। आपने जो अपने हेल्थ सिस्टम का तबाह कर रखा है, इसकी वजह से ये सारी मौतें हुई। और जो 4 घंटे के नोटिस पे आपने पूरे कंट्री को लॉकडाउन किया है, यू आर द क्रिमिनल्स, द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री आर क्रिमिनल्स फॉर देयर डेथ्स, फॉर कॉजिंग द डेथ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दोज डेज, जो सड़कों पे मरे, रेलगाड़ी के नीचे कट के मरे, ये सब जो है। तो मैं तो मतलब मुझे तो असल में ये बहुत ही एक तकलीफदेह बात लगती है कि हम लोग आज़ादी और बराबरी की बातें करें ऐसे हालात। तो कॉलोनियलिज्म से भी मच वर्स हालात। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, नहीं, कतई गलत नहीं है। दीज आर मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट, दीज आर मोस्ट, ये तो ह्यूमन जो इसको कहना चाहिए मनुष्य का जो लक्ष्य है, इंसानियत की जो मंजिल, सारी दुनिया की इंसानियत, खाली हिंदुस्तान की नहीं, सारी दुनिया की इंसानियत की मंजिल यही आज़ादी बराबरी, और आज़ादी बराबरी समाजवाद। मैंने आप दुनिया भर में जितनी चाहे गाली दे लीजिए मार्क्सिज्म को, लेकिन बराबरी आप बिना समाजवाद के ला ही नहीं सकते। जब तक आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं करेंगे, जब तक मजदूर और किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, will not he get the full remuneration for his labor, जब तक निखट्टू लोग, खाली महलों में बैठ के कारखानों के मैनेजर बन के अपना काम चलाने वाले लोग, जब तक आप उनके लिए सारी दौलत रखते रहेंगे, तो दैट बराबरी इज नो बराबरी। बराबरी तब है वो बिना समाजवाद के बराबरी हो ही नहीं सकती। दैट वाज द व्हाट गांधी एंड भगत सिंह डिफरेंस लाइज देयर। गांधी जी सोचते हैं कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत कर देंगे, सब लोग अपनी दौलत छोड़ देंगे, सारे अपनी दौलत अपने कौम को, राष्ट्र को दे देंगे, और राष्ट्र जो है वो सबके लिए बराबर की सुविधाएं देगा। आपने तो देख लिया 70 साल हो गए गांधी का जाप करते हुए, अब भी सुबह से लेके गांधी का जाप होता है। अब सुबह आप खबरें सुन लीजिए, पहले 1 मिनट गांधी का जाप शुरू हो जाता है, खबरें खत्म होती हैं तब गांधी का जाप शुरू हो जाता है। दिन में कितने बुलेटिन आते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा, ये जितने ज्यादा क्रिमिनल रजीम है उतने ज्यादा गांधी का नाम लेते हैं। द प्रेजेंट रजीम इज मोर क्रिमिनल रजीम देन द अर्लियर रजीम, दैट्स व्हाई दे आर मोर चैंट गांधी गांधी गांधी। एंड दे सुबह के अखबार 8 बजे वाली खबरों में भी आप नेशनल न्यूज सुनिए, और रात को भी आप 9 बजे नेशनल न्यूज सुनिए, उसमें पहले 30 सेकंड या 1 मिनट या आखिरी 30 सेकंड और 1 मिनट गांधी चाट, गांधी का भजन गाया जाता है, गांधी का नाम लिया जाता है, और गांधी की हत्या की जाती है। पहले उसकी शारीरिक रूप में हत्या की गई, वो भी हिंदुत्ववादी ने की, और अब उसकी आत्मा की बुरी तरह से हत्या की जा रही है, वो भी हिंदुत्ववाद के रजीम कर रहे हैं। मैंने आपने गांधी को बदल दिया एक सफाई उसमें, क्या गांधी बस इतना ही था? जैसे भगत सिंह को बदल दिया था वीर बहादुर में, ब्रेव, फियरलेस, पैट्रियट, उससे ज्यादा भी था। गांधी भी स्वच्छता से बहुत ज्यादा है। गांधी को आपने स्वच्छता के उसमें बदल दिया कि खाली झाड़ू लगा दो गांधी के नाम पे। ये झाड़ू लगाने से गांधी के विचार खत्म नहीं होते। गांधी जी के विचार अलग थे, भगत सिंह के विचार अलग थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के विचार मानवीय थे। गांधी जी के विचार ऐसे इनह्यूमन विचार नहीं थे जो इस रजीम के, जो इस हिंदुत्ववाद के, जो इस किसी भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के। सबसे भगत सिंह ने सख्ती से जिनके बारे में लिखा है वो तो इस कम्युनल फोर्सेस के बारे में ही लिखा है, जहाँ पे बराबरी सबसे पहले हिट होती है। 2 लेख उन्होंने लिखे, मजहब और हमारी आज़ादी की जंग और फिरकू फसादात और उनका इलाज। उर्दू में, पंजाबी में लिखे थे, हिंदी में, अंग्रेजी में इनका तर्जुमा हो चुका है, मराठी में भी हो चुका है। मराठी में तो भगत सिंह की पूरी राइटिंग उपलब्ध है। डॉक्टर दत्ता देसाई ने उनको
मराठी में करके उपलब्ध करा दिया है। 2 एडिशन उसके निकल चुके थे, एक 2016 में निकला, एक 2008 में निकला, और जस्टिस पीवी सावंत ने उसकी भूमिका भी लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस में। तो वो मैंने उनने ये कहा कि हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क इन धर्मों ने कर रखा है, और ये आज़ादी के संग्राम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये धार्मिक जो उन्मादी हैं, जो कम्युनल फंडामेंटलिस्ट हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं। तो इसलिए वो, मैं इसमें क्योंकि वक्त शायद इतना नहीं है कि ज़्यादा लंबी बात करने का, तो वो धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखेंगे। हाँ, जो मैं फिर भटक गया रास्ते से अपने बात करने में, कि जो सेकंड ट्रेंड रेवोल्यूशन था उसमें जब मैंने गदर पार्टी की बात की तो गदर पार्टी ने सबसे पहली बार धर्म और राजनीति को अलग किया। उन्होंने कहा कि द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विल बी एब्सोल्युटली सेकुलर, इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, रिलीजन इज अ पर्सनल फेथ, और लोग अपने घर में चाहे कुछ भी करें, लेकिन जब गदर पार्टी के अंदर है, हिंदू हैं या सिख हैं या मुसलमान हैं, और सब थे उसमें, तो देन दे आर जस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड फ्रीडम फाइटर्स, नथिंग एल्स। तो वहां पे और कोई धर्म की बात होगी ही नहीं। मैंने भगत सिंह ने भी इसके बारे में खूब लिखा है कि कांग्रेस के सेशन में कि स्टेज से एक जो है वो धार्मिक पाठ किए जाने लगे, एक हिंदू का, एक मुसलमान का, एक सिख का। तो उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, दिस इज अ पॉलिटिकल मीटिंग, ये पॉलिटिकल मीटिंग में ये आप क्या कर रहे हैं। नेहरू जी ने भी इसका विरोध किया था, तब जाके वो बंद हुआ था। ये कांग्रेस के प्लेटफॉर्मों पे होता रहा है, जब आज़ादी से पहले कांग्रेस के सेशन होते थे। तो मैंने जो सर्वधर्म संभाव का जो एक नाटक आया हुआ है, वो नाटक इसी से आया हुआ है। मैंने सर्वधर्म संभाव इज ए नाटक, अदरवाइज द सेक्युलरिज्म इज द क्लियर कट पार्टीशन डिवीजन between religion and politics. Both have nothing to do with each other. Religion is a personal affair and politics is a social affair. So you have to stick to politics as a social activity, and you have to have faith in your personal capacity. अपने घर में आप कुछ भी करिए, कोई भी फेथ रखिए, लेकिन ये सर्वधर्म संभाव एक नाटक है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला कॉन्सेप्ट है। जो कांग्रेस ने ही अपना छोड़ के नेहरू वाला रास्ता उसको ये घोलमोल कर दिया, उसकी वजह से ये आरएसएस वाले आए, उसी की वजह से ये सब आए हैं, जिनको मौका मिल गया कि हाँ धर्म के नाम पे आप कुछ भी कर सकते। तो ये सारी चीजें, तीसरा ट्रेंड, हाँ यस, लेट मी कम टू कंक्लूजन, कि तीसरा ट्रेंड था उस समय कम्युनल फंडामेंटलिज्म का, एंड दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय ऑन वन साइड मुस्लिम लीग व्हिच वाज लेड बाय जिन्ना, हु वाज वंस पार्ट ऑफ कांग्रेस, 16 तक तो कांग्रेस में ही रहे हो वो, और उसके बाद से दिस वाज आरएसएस व्हिच वाज केम इनटू बीइंग अराउंड 1925, केशवराव हेगड़े, बाला साहब देवरस, these were the Golwalkar, these were the people who created the hatred concept of India, who created the Hindu India concept. Veer Savarkar, these were the people who were responsible for partition of this country, who are responsible for this कत्लेआम। मुस्लिम लीग और आरएसएस दोनों जिम्मेदार, दोनों ने जो है ये सब करवाया है, और वो सारा करके आज वो पावर में। So these were the three trends, and Congress and revolutionaries, they were, having a critical appreciation for each other. They were having a relation with each other, which you can say critical appreciation. They will criticize them and they will criticize them. Congress will criticize revolutionaries and revolutionaries will criticize Congress. But then they used to work together many times. आज भी वही सिचुएशन है, वो सिचुएशन बदली ही नहीं। Revolutionaries had nothing to do with these agents of hatred like Muslim League and RSS and Hindutva. They had nothing to do with that. They were deadly, they were as enemies of them as they were of British colonialism. They considered British colonialism, feudalism, and religious fundamentalism, whether in the Hindutva form, whether in the Muslim League form, Islamic form. They were as much enemies of Indian people as was British colonialism. That was their clear vision. This clear vision Gandhi didn't have. That's what there is a difference between Bhagat Singh and Gandhi. Bhagat Singh was clear in his vision. He knew that these are the most dangerous trends in Indian society, and their trends have to be isolated. Gandhi was thinking कि ठीक है, धर्म के नाम पे थोड़ा करके इनको साथ साथ रखा जाए,
तो ये साथ साथ रहने वाला नहीं, वो गांधी जी का आइडियलिज्म फेल हुआ। इनफैक्ट गांधी जी को एक ऐसा मैंने बिल्ड किया गया है आइकॉन पूरी दुनिया में, ताकि कहीं भी जहाँ पे रेजिस्टेंस और रिबेलियन होती है उनको गांधी जी के नाम पे खत्म किया जाए। तो एन आइकॉन ऑफ पीस, एन आइकॉन ऑफ पीसफुल चेंज, कहीं दुनिया में पीसफुल चेंज नहीं था। आप मुझे दिखा दीजिए साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में तो गांधी जी खुद रहे। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला has to suffer 27 years in that prison, but then the fight of against British racialism and colonialism was armed, and South Africa didn't get freedom like as is said in India कि वो तो बड़ा peaceful transition है। peaceful transition तो इंडिया में भी नहीं। मैंने अभी भी, मैं कल ही वायर पे किसी का पढ़ रहा था लेख, बहुत किसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल का, कि असल में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार थी वो ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एक थी उनमें, और उसके बाद से रॉयल इंडिया नेवी की मूवमेंट थी 1946 में, जो बॉम्बे से शुरू हुई और दूसरे हर बंदरगाहों में फैली। दीज वर द आर्म्ड रिबेलियंस, और 1857 वाले भी आर्म्ड रिबेलियंस। दीज हैज क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर ब्रिटिश टू लीव। उसका पाखंड जो भी रहा, but these were the compelling factors for British colonialism to leave India. And Royal Indian Navy and the Azad Hind Fauj नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सो हिंदुस्तान की आज़ादी ऐसे ये पाखंड है कि शांतिपूर्ण तरीके से, देयर वाज नो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ इंडियन फ्रीडम। इट हैज टू कंपेल ब्रिटिश colonialism by all these radical movements. Azad Hind Fauj, Royal Indian Navy, Bhagat Singh's Hindustan Socialist Republican Army, Naujawan Bharat Sabha, all these have contributed to achievement of whatever curtailed fall, whatever जो जिसको कहना चाहिए कि गांधी जिन्ना कहता था कि मुझे तो मोट हिटन पाकिस्तान मिला है, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान को मोट हिटन आज़ादी मिली। ये जो मोट हिटन आज़ादी मिली है, वो इन सारे कंपल्शन, कांग्रेस का रोल है। मतलब आई विल नॉट डिनाई that Congress didn't have any role. Congress also had its role, but these revolutionary movements also had its role. Now these are having interaction, critical interaction with each other, and they try to convince each other with their arguments. That is the kind of important aspect. But you cannot argue with those RSS Hindutva kind of people or Muslim League kind of people who are Khalistani kind of people. So they are the ones, they don't have brains to argue with you. They know only to kill, they know only to hate. So you cannot have any dialogue with people who are full of hatred and full of ignorance. They're completely, totally devoid of knowledge, even if they have PhDs. Indian education minister is PhD, poet, 50 books, and he's a big zero in his brain. He's nothing in his brain. There is no grain in his brain. So these are the kind of people with whom, how would you argue? They don't listen to arguments even in parliament. You know what they had done in parliament? How the foreign bills have been passed? By crushing all the procedures of parliament. They don't have any respect for any democratic, because for democratic kind of mindset, you need a little brain, you need a little knowledge, and you need to argue. And they don't have any argument. So Bhagat Singh's biggest asset was his criticality of mind, his argumentative. He was a real argumentative Indian in Amartya Sen's terms. You see his essay, Why I'm an Atheist, how he argues with these religious people, and how he, you know, whether he is able to convince them or not, that is another matter. But he wins in his arguments. That is the great argumentative, critical-minded Indian that was Bhagat Singh. Here I will, end my talk. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Saman Lal, sir. अपने relevance of Bhagat Singh in today's world इस विषय पर बात करते हुए काफी कुछ बोल गए हैं। मुझे लगता है आपने सिर्फ भगत सिंह का टाइम के बारे में ही नहीं, और आज का दौर में जो अनजस्ट स्पेशली इंडिया में चल रहा है उसका बारे में भी
बहुत अच्छी तरह से बोला है। और मुझे तो बहुत नया कुछ सीखने को मिला, स्पेशली आपने जो बोला आज इंटरनल कॉलोनियलिज्म, ये मुझे बहुत नया आइडिया लगा। Then he also spoke about how the Indian health system in the present day has been deteriorated under this present government, and most probably you are arguing that in this situation Bhagat Singh kind leader we Indian really require at this present time. तो काफी समय हो गया है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक या दो सवाल है पार्टिसिपेंट्स ने रेज किया है, अगर उसका आपने जवाब दे दिया तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। मुझे तो अभी तक 2 ही सवाल नजर में आया जी। किसी एक ने लिखा है, उनका इसमें नाम नहीं लिखा है। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, डू यू एग्री दैट बीजेपी RSS are now on the way to make Hindu Pakistan in India? This is number 1. Yeah. And another question is raised by Irfan Engineer Director, CSSS Mumbai. Yeah. And he is asking, do you blame the present regime or the constitution itself? These are the two questions raised by the participants. अगर इस दोनों क्वेश्चन का आप उत्तर दे दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक पहला सवाल है उसके बारे में तो मेरे ख्याल में मैं बोला ही इतना कुछ हूँ कि उसी में सब कुछ जवाब उसमें आ जाता है। जी हाँ, मेरे ख्याल से आपका पूरा वक्तृता में इस सवाल का उत्तर तो आ ही गया होगा, आंसर तो आ ही गया होगा। लेकिन जो दूसरा सवाल है इरफान साहब का, और एक मैंने अभी चैट में पढ़ा भी, हो सकता है उसमें एक चैट में जो मैंने पढ़ा है कि 15 अगस्त को गांधी जी कलकत्ता में थे, नोआखाली में नहीं थे। दैट कुड बी करेक्ट, मतलब दैट कुड बी माय एरर आल्सो। लेकिन 46 के दंगों में वो नोआखाली में बैठे थे भूख हड़ताल पे, और उनको जब कहा गया था कि आप दिल्ली चलिए तो उन्होंने कहा था नहीं मुझे यहीं रहना। तो कोई कलकत्ता के हालात भी उसमें अच्छे नहीं थे, तो इसलिए वो कम्युनल पीस के लिए वहीं थे, बंगाल में थे कम से कम। वो कलकत्ता में थे या नोआखाली में थे, उसमें मैं गलत हो सकता हूँ। दूसरा, उस चैट में कुछ और भी लिखा हुआ था। जी हाँ, हाँ, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जिससे रजीम का सवाल है, इस रजीम में तो हिंदुस्तान का कोई भी आज़ादी चाहने वाला या बराबरी चाहने वाला आदमी यकीन कर ही नहीं सकता। आई डोंट थिंक एनी पर्सन हैविंग ए लिटिल सेंस ऑफ फ्रीडम and equality can trust this regime. This is not the regime to trust it. This is the enemy of the people. This regime is enemy of the people. This I say. So, constitution का जहाँ तक सवाल है, the constitution is being crushed under their feet. ये constitution की क्या परवाह कर रहे हैं? Constitution तो डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही कहा है कि constitution तो जिस तरह के हाथों में रहेगा उस तरह के हाथों में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने if you are a people who trust in a kind of system where laws are properly followed, civil society peace is properly followed, and you allow people to, express themselves, and they are the people who can treat the constitution. Any good constitution under bad hands can be turned into a tool of oppression. दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली दंगों में जिन लोगों ने, जो लोग पावर में बैठे हैं, उन लोगों ने दंगे करवाए, गोली मारो सालों को कह के, उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा। Where is that constitution? Who bothered about that constitution? मैंने, और हमारी 1 साल से कश्मीर में वो सब लगा रखा है, तो हमारी इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, इतनी जस्टिस का सेंटर है, तो उस जस्टिस के सेंटर में 1 साल से जो सारे मामले अटके हुए हैं, तो वे विच कॉन्स्टिट्यूशन से कि ठीक है आप दबा के बैठे रहो मामलों को 2-2 साल तक, 1-1 साल तक। तो ये सारा जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गुड आइडिया बट इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। एंड मैंने जितने हमारे आंदोलन इस वक्त हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के, मैं कह रहा हूँ उस आंदोलनों से निकलेगा क्या? इन विच हैंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज, दे विल डील विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन दिस वे ओनली, unless these people are thrown out of power, unless these people rise themselves and say that these are the people who are enemies of people, enemies of constitution, and we don't need such rulers, and we need new rulers. And if they elect new rulers, if they elect those people
who can really, make use of constitutions, provisions of equality, etc. And advance those equalities further. For education, for health, for all kind of control of corporates, huge rising, incomes and all that. Let me just tell you one thing. In Nordic countries, what do you call Scandinavian countries, Norway, Sweden, Denmark, etc., Finland, there are 4 or 5 countries. These 4 or 5 countries, although they are ruled by sometimes right-wing parties, even then they have a system that they will keep their education and health totally free, completely free. Even if an Indian goes to Norway or Canada or Finland, he or she will be allowed free education. Now, and free health. Now, for that, they tax their corporates or capitalists or whosoever they are up to the level of 70% on their incomes. Here you are giving them, tax relief, tax free. You have made the tax free. These Ambanis and Andanis who have squeezed the Indian population like anything. When he has become the 4th biggest earner of the world, why can't you put 70% tax on that man? Your whole COVID health system will improve. You can turn why don't you turn all private hospitals into government hospitals? Why don't you do that? Spain has done that. During COVID crisis, many countries have turned their private hospitals into government hospitals. And why this government is not doing, which is facing much worse crisis? They can turn all government hospitals at least for the crisis period. For 6 months, for 1 year, they can turn all government hospitals into all private hospitals into government hospitals, and they can throw those private sharks away who are squeezing Indian blood through their private hospitals and their private schools and everything. No, this is the kind of thing. If Nordic countries, even with right-wing governments, can do this thing, why can't they do it? So that is actually, this constitution may be good, I don't say, but खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अंडर क्लास कंपल्शन बनाया है, एंड व्हेन द टाइम कम्स आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन. ये डॉक्टर अम्बेडकर शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है. आपके बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हुए हैं 55-56 में, और उसमें लिखा हुआ है कि आई विल बी द फर्स्ट टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्लासेस, नॉट द पीपल. वो तो मैंने सिर्फ पीपल को थोड़ी रियायतें दी. And what Dr. Ambedkar knew, he was also very aware about it, that what I am offering is some kind of relief to the Dalits, to the working people, so that they do not get completely crushed under these capitalists and feudals. So that's what he knew. But any constitution, those जो लोग ये कहते हैं कि constitution बचाओ, constitution एक धर्म ग्रंथ है, I don't agree with them. I want that constitution be changed into progressive form. For more equality, for bringing more economic equality. But that constitution can be changed only by those political powers, as and when they come to power, which are much more advanced than them. So I don't treat constitution. Yes, in present circumstances, you can say that whatever provision this constitution has, they must be protected. To that extent, I agree that the provisions of this constitution at present, under present circumstances, must be protected. At least the reliefs which Dr. Ambedkar has been able to give to the people of India, those reliefs should sustain. At this moment, those reliefs are being taken away from people. Dalits are being crushed, minorities are being crushed, working people are being crushed, employees are being crushed, youth are being crushed, students are being crushed. So that kind of protection, whichever is provided by the constitution, that to that extent I agree, that should be protected. Thank you, sir. Anything, Irfan Sahab, or if you have any other comment? Or yeah, one more I would question, like to sir. have his comment. I want to actually have comment from Professor Irfan Engineer Sahab. अगर वो अपना comment करे तो अच्छा होगा. It will be good if he can also, say something. I'll give my comments in 1 minute in the end.
If somebody has asked other questions, Yeah, let them ask. one more question. One participant, Rakesh, he is insisting and asking one more question, and he's asking how can we fight against RSS? What is the method? That is what he Actually, wrote. the best way to fight RSS is not to fight RSS. You should fight at the level of peasantry. You should fight at the Yes, level sir. of workers. You should fight at the level of youth. You should fight at the level of students. You should fight at the level of women. If you make all these people rise for their own liberties, own rights, then you fight RSS. The fight with RSS is built in these people's fights. So people's Okay. fights for their rights, that will be the best way to fight RSS. And throw them away from power. Thank you, sir. ये आपका लेक्चर काफी enriching था and it enlightened us a lot. I'm sure our participants are benefited a lot. So before we sum it up, may I request Irfan Engineer, Director CSSS, to make his comment. Sir, please. Yeah. Thank you, Professor Saab. I've been reading you a lot. I remember during my college days when I was associated with student movement, I used to go to a slum and they invited me to speak about Bhagat Singh. It's your book that I read and learned about Bhagat Singh and went and spoke there. Bhagat Singh is a big inspiration for all of us. They are revolutionaries. They thought far ahead of their times. They were far more philosophical. They were far more wise for their time. And I wish we need many more Bhagat Singhs. You aptly brought out the history of those times, that the independence that Bhagat Singh dreamt of is being denied to us under this present regime. But you are very rightly blaming not only the present regime, but I think more than present regime, the entire capitalist system, which is denying us, and particularly the peasantry, particularly the workers, the rights that they are entitled to, the privileges, the rights, the services that that was required. This entire system is enriching a few of them, as you very rightly brought out in your entire presentation. And thank you very much for your presentation. And I enjoyed this talk. And hope we all, हम लोग सब लोग जो यहाँ है, सब लोग इकट्ठा रहकर आपने जो कहा है उससे इंस्पिरेशन लेकर आज किसान आंदोलित है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, लेबर लॉज भी काफ़ी उसमें बदल किया है, तो किसान और मजदूरों के साथ और नौजवानों के साथ जो हम लोग मिलकर एक डेमोक्रेटिक रिजाइम कायम कर सकेंगे. सो आपने उसके लिए प्रेरणा दी है. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब. आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सो who is proposing vote of thanks? Are we proposing vote of thanks? Okay. If no one is there, then Yeah, then please I go can. ahead. Okay. So ये session काफी मुझे तो बहुत wonderful लगा, and it was very exciting for me because I could learn a lot. Anyways, at the very beginning, I would like to offer my sincere thanks to Professor Saman Lal, जिन्होंने हमारा invitation पर आया और हमें इतनी अच्छी तरह से भगत सिंह का बारे में समझाया. So it was very pleasant moment for all of us. So on behalf of the organizations, I offer my thanks to Professor Saman Lal, and also I offer my sincere thanks to all
all the workers associated with CSSS and other organizations for holding such a wonderful webinar. So thank you all. Okay. थैंक यू सर. आई वुड एक बार अंशु जी, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मिलकर ये आयोजित किया है, मैं उनके पोस्टर में नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर किसी के पास रेडी हो. Yeah, I can. हाँ, एक मिनट मिला. प्लीज रीड द नेम्स. Okay, just a minute. This session, ये session. Yes, yeah, हमारा organization, all the names of all the organizations are, the prime organization is Center for the Study of Society and Secularism, Mumbai, and co-organizers are Institute for Social Democracy, New Delhi, then Amra Ek Sachetan Prayas Forum, Kolkata, then Parsam Society, Saharanpur, Afkar India Foundation, Shamli, Campaign for Peace, Kandhamal, Forum for Harmony and Humanity, Assam, Harmony Foundation, Indore, Muhim, Allahabad, National Peace Group, Ahmedabad, Poridhi, Bhagalpur, and Revolutionary Cultural Forum, Chhattisgarh. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के ये वेबिनार का आयोजन किया था नहीं, एक्चुअली किया है, आगे भी 2 दिन चलने वाला है. So I offer my sincere thanks to all the organizers for organizing such wonderful program.